Hello dear champions, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Fair classes. So in the part 4 we discussed about exercise 10.2 and in this part we are going to discuss about all examples, and in the next part, it means in the part 6, we will discuss about PYQs, previous year questions. And one more thing, if you are new on this channel, first of all subscribe this one, like the video, comment on this video and share with your friends. Listen, in the example first, what we have given that prove that in two concentric circles, and as I told you that concentric circles means two or more than two circles which have a common center, कि दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन, that known as concentric circles. The chord of the larger circle, chord means if we join 2 points on the circumference of the circle, then the line segment will known as chord. Yes or no? So the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact. तो ये ऐसा कुछ गिवन था, मैंने इसके भी आप ऐसी फिगर बनाई है, ठीक है. सो लिसन, ये आपके पास जो अंदर वाला सर्कल है, आई एम एज्यूमिंग दैट द फर्स्ट सर्कल, इट मीन सर्कल 1, और जो आपके पास बाहर वाला सर्कल है, मैं इसको मान रहा हूं कि आपके पास जो सर्कल है ये है सर्कल 2. ओके, सो वी हैव टू सर्कल C1 एंड C2 and this is the code. Okay, so this is the code. What we have given, first of all, we have given two concentric circles, two concentric circles C1 and C2, और उनका सेंटर क्या है, उनका सेंटर है O, विथ सेंटर O. कोई डाउट है? ओके, एंड AB इज कोड. ये जो आपके पास है ये एक क्या है, कोड है. किसकी कोड है? जो आपके पास लार्जर सर्कल है, इट मीन जो C2 है उसकी क्या है, कोड. AB इज अ कोड ऑफ लार्जर सर्कल. आप ऐसे भी बोल सकते हो C2 ऑफ C2 विच टचेज सर्कल 1, पहले वाले सर्कल को, विच टचेज C1, विच टचेज C1 का मींस फर्स्ट सर्कल, विच टचेज C1 एट कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोल दिया, विच टचेज एट पॉइंट P. इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है. अब आपने क्या किया, मैंने पहले से डायग्राम बना रखा था, फिर जैसे आपने इस पॉइंट P को सर्कल के सेंटर से क्या करवा दिया, ज्वाइन, तो आपने बोला ज्वाइन OP. OP को क्या करवा दिया आपने, ज्वाइन भी करवा दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस पर ये क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं. मींस AP इक्वल्स टू PB. AP equals to PB. As we all know that if AB is a chord which touches the circle 1 at point P, and by theorem 10.1 the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. कि आपके पास जो ये पॉइंट है ये यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. रीजन बाय थ्योरम 10.1. स्टेटमेंट याद है? नहीं याद है तो याद कर लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. The tangent at any point of a circle is a perpendicular to the radius through the point of a contact. मुझे याद है और मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूं. फिर भी अगर आप चाहते हो तो देखो मैं मेंशन भी कर देता हूं. बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 इसका प्रूफ है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रूफ. बाय थ्योरम 10.1 the tangent at any point of a circle, the tangent at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is perpendicular, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact. It means we can say that OP is perpendicular to AB. OP is perpendicular to AB. कि जो OP है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर. CS और नो है ना, परपेंडिकुलर बाय थ्योरम 10.1. एंड इन द 9th क्लास आपने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा दैट, क्या पढ़ा होगा आपने, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए चॉर्ड. अब आप एक बार इसको भूल जाओ, इस वाले सर्कल को भूल जाओ, भूल गए क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो हो ही गया, है ना. आपने पढ़ा होगा क्या, द टेंजेंट, the perpendicular from the perpendicular from the center of a circle, the perpendicular from the center of a circle to a chord,
to a chord, bisect the chord, to a chord, bisect the chord, bisect the chord. आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा होगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, कि अगर आप सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये मैंने यहां लिखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, कि इस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मींस क्या है कि एपी किसके इक्वल आ जाएगा, पीबी। सो एपी इक्वल्स टू पीबी, एंड द सेम थिंग दैट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था, यस और नो, कोई डाउट है? और आपने परपेंडिकुलर किससे प्रूफ किया है भाई, थ्योरम 10.1। सो एग्जांपल 2, लिसन, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। देखो आपके पास टू टेंजेंट्स हैं, सॉरी टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल। एक सर्कल पे आपने टू टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टीपी और टीक्यू, विद सेंटर हो, और इसका सेंटर क्या है, ओ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या आपके पास, टी हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा आपके पास टी। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है पी टी क्यू, जब भी ऐसा कोई एंगल आ रहा हो, इट मींस मिड वाले एंगल की, बीच वाले की बात करते हैं, और बातें हमेशा किसकी होंगी, बीच वाले की होंगी ना, ना वो नहीं, बीच वाला मींस कोई तीन के बीच में, कोई तीन पर्सन है और उनके बीच में जो है एक इधर बीच वाला, बातें उसी की होंगी, है ना, जो बीच में ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में कौन है, टी, तो बातें उसी की होंगी जो बीच में है, तो इट मींस टी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये वाला टी जो एंगल है, ओ पी क्यू, आपको बताना है कि यहाँ जो एंगल बनेगा उसका यहाँ डबल बनेगा। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60, यहाँ 40 है तो यहाँ 80, यहाँ 100 है तो यहाँ 200, ऐसे बता रहा हूँ, बाकी पॉसिबल नहीं है 100 बनना। ठीक है, सो जो भी एंगल बनेगा वो, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ 2 थीटा, मींस उसका ट्वाइस होगा। यस और नो? सो लिसन द फिगर दैट वी हैव गिवन इन द एग्जांपल। सो देखो अपन स्टार्ट करते हैं आंसर। व्हाट वी हैव गिवन, we have given a circle with center O, a circle with a center, a circle with center O, yes or no? And TP and TQ are two tangents, TP and TQ are two tangents, are two tangents, yes or no? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। ओके, कम नेक्स्ट, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो आपके पास पी टी क्यू है ना, वो थीटा है, क्या है, थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख दो कि टू प्रूव, या फिर लेट एज्यूम दैट, लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू थीटा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको वो बताओ अभी आप। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू टू एंगल ओ पी क्यू। कोई डाउट है? ओके नेक्स्ट, अब आपको यहां जो बन रहा है उसका डबल प्रूफ करना है, यस और नो? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, दैट आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है और आप उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, टू टेंजेंट, इट मींस उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कौन सी थ्योरम है, 10.2। सो लिखो यहां पर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point, drawn from an external point to a circle, to a circle are equal। कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। इट मींस टीपी इक्वल्स टू टीक्यू। ये बात लिखने के लिए मुझे इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ा है, बस आपको याद होनी चाहिए वैसे, है ना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से 5 मार्क्स का, तो लिखनी पड़ेगी आपको, मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अभी आपके पास एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ट्राइंगल कौन सा है देखो, मैं एक बार फिर से उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं। दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल है, पी टी क्यू। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल पी टी क्यू। और मैंने इसी ट्राइंगल को चूज क्यों किया, आपको पता है ये ट्राइंगल जो है इसकी टू साइड्स इक्वल होगी, टीपी इक्वल्स टू टी क्यू। एंड इन द 9th क्लास वी स्टडीड दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। लिख देता हूं, इनके एंगल्स का सम क्या होगा, 180। ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो एक थ्योरम पढ़ी होगी, इफ two sides are equal, if two sides are equal, if two sides are equal in a triangle, then their
then their opposite angles are also equal. Opposite angles are also equal. कि अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर टू एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। इट मींस इनका कन्वर्स भी ट्रू है। ये क्या बोल रहा है, टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल। यस और नो? तो यहां पर आपको पता है कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो कौन सा एंगल, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी। ये एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। एंड सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। सो लिसन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो बोलो क्या होगा, एंगल, स्टार्ट करो यहां से, टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी प्लस, देखो ये वाला एंगल ले लिया, ये ले लिया, अब ये बच गया, तो पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मुझे बताओ, मुझे जो एंगल प्रूफ करना है वो कौन से वाला प्रूफ करना है, इसका डबल यहां प्रूफ करना है। यस और नो? इट मींस मेरा ये जो वाला एंगल है वो मुझे कहीं काम नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि उधर वाला एंगल आपको जो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल डबल, ये इसका डबल ये होगा। मींस उधर वाला एंगल आपको लेके चलना है, ये आपको कहीं काम नहीं आ रहा है, इसमें कहीं काम आ रहा है क्या, नहीं। तो इट मींस मुझे ये क्यू वाला एंगल नहीं चाहिए। तो ये देखा, आपको क्यू वाला एंगल आपको नहीं चाहिए, तो टी क्यू पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी पी क्यू। रीजन मैंने बता दिया कि ये वाला एंगल मुझे इस क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसकी जगह किसको लिख रहा हूँ, टी पी क्यू को। तो देखो, एंगल टी पी क्यू पहले से था आपके पास, प्लस एंगल इसकी जगह क्या लिख दिया, टी पी क्यू प्लस पी टी क्यू को आपने क्या एज्यूम किया था, थीटा। सो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए थीटा इक्वल्स टू 180। जो थीटा है वो एक नोटेशन है जिससे एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप एक्स वाई लेते हो वैसे ही आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा ले सकते हो। ये प्लस का थीटा उधर जाएगा माइनस का। सो बताओ, टू एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। तो देखो इधर क्या बचेगा आपके पास, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। कोई डाउट है? अब अगर आपके पास कभी भी ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप एक बार 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार थीटा को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। यस और नो? अब 180 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 90। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। इट मींस आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, टी पी क्यू की आ गई। एंड बाई थ्योरम 10.1, देखो ये आपके पास थ्योरम 10.1, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं कि बाई थ्योरम 10.1, देखो मैंने स्टेटमेंट मेंशन कर रखा है, आप जरूर मेंशन करना। बाय थ्योरम 10.1 क्या, बोलो, the tangent at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is perpendicular, देखो ये वाला जो है ना इसको हटा दो एक बार के लिए, है ना, is a perpendicular to the radius through the point of a contact। ये पढ़ा ना आपने कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा बाय थ्योरम 10.1। तो देखो मैं इसको ज्वाइन करवा रहा हूँ अभी फिर से एक बार। इट मींस अगर मैं चाहूं कि इधर वाले एंगल और इधर वाले एंगल दोनों का सम क्या 90, इसका मतलब ये है, देखो एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है 90 बाय थ्योरम 10.1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस ये वाला एंगल, तो टी पी क्यू, टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। अब आप ध्यान से देखोगे कि आपके पास टी पी क्यू जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर ली थी, क्या, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो आप इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो इसकी जगह तो ये ओ पी क्यू प्लस इसकी जगह क्या आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो? अब इधर ये 90 से 90 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये माइनस का थीटा बाई 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। सो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो थीटा क्या था, पी टी क्यू, पी टी क्यू
बाई 2। यस और नो? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि आपने पीटीक्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पीटीक्यू इक्वल्स टू 2 को किसे मल्टीप्लाई किया? ओपीक्यू से, सो 2 ओपीक्यू। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। So this is the example 3. Listen, what we have given. PQ is a chord of a length 8 centimeter. PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersected at a point T. Find the length TP. Okay. So first of all, TP and TQ are two tangents. Yes or no? The length at P and Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, कि ये जो P और ये Q है ये कहां पर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो कहां पर इंटरसेक्ट करिए एक दूसरे को? पॉइंट T पर। PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, कि आपके पास जो PQ है इसकी लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। यस और नो? एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज O. Is there any doubt? No. Next, intersect at a point on T, find the length TP. आपको क्या find out करना है? TP. We will discuss this question by 3 methods. आप इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सोल्व कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके चैप्टर 10 का। So listen, कैसे? First of all, we are going to discuss about answer first method 1. ठीक है? So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट बाय सिमिलरिटी, कि आप सिमिलरिटी से इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। सो लिसन ऑल ऑफ यू, एज वी ऑल नो दैट टीपी इक्वल्स टू टीक्यू। सीरियस नो? चलो पहले छोड़ो इस बात को, पहले देखते हैं गिवन दैट व्हाट वी हैव गिवन। इस सर्कल, अपने को एज्यूम नहीं कि आप एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, and TP and TQ are two tangents. TP and TQ are two tangents. TP and TQ are two tangents. Yes or no? And AB is a chord of this circle. Sorry, PQ. PQ है ना? PQ is a chord of this circle. PQ is a chord of this circle. जो PQ है वो इस सर्कल की क्या है? कोड है। एंड इसकी जो लेंथ है वो क्या गिवन है? PQ equals to 8 centimeter and radius of this is 5 centimeters. Yes or no? Next, as you all know that TP equals to TQ. TP equals to TQ. Reason? The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Yes or no? Okay. So find out. We have to find out TP. क्या find out करना है? TP. So proof या solution. Solution. First of all, I am using theorem 10.2. Theorem 10.2. Statement लिखना है क्या? लिखूं? चलो लिख देता हूँ। देखो, the length of tangents, the length of tangents, the length of tangents drawn from an external point, drawn from an external point, an external point to a circle are equal. कि अगर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो दोनों, तो उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल। सो वी कैन से टीपी इक्वल्स टू टीक्यू। यस और नो? अगर आपको पता है जो ट्राइंगल टीपीक्यू है वो एक कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। रीजन? बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। if two sides, or we can say two angles, are equal in a triangle, then the angle will be isosceles triangle. So we can say triangle TPO is a isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल आपके पास? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कोई डाउट है? नाउ आपने थ्योरम पढ़ी होगी, इफ वी हैव ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उस आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर को आप, जैसे ये आपने यहाँ पर क्या ले लिया, एक लाइन ड्रॉ कर रही है और उस लाइन ड्रॉ जो कर रही है वो एक एंगल बाइसेक्टर है। इफ आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के एक एंगल को क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो, तो वो जहां पर थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगी, जिस साइड को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर वो परपेंडिकुलर भी होगी और वो उसको क्या करेगी? बाइसेक्ट भी करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट। सॉल्यूशन, अब मैं जो टी है उस टी को किसे जॉइन करवा रहा हूँ? ओ से जॉइन करवा रहा हूँ, एंड टीओ इज द एंगल बाइसेक्टर, है ना?
और ये जहां पर इस PQ को कट कर रही है उस पॉइंट को क्या बोल दिया, R। सो TO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल TPQ। और TPQ कैसा ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब आप इस एंगल बाइसेक्टर को लोगे, क्या लोगे इसको, एंगल बाइसेक्टर को। और बोला सर आपको कैसे पता ये एंगल बाइसेक्टर ही है, तो आपको याद होगा मैंने एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको उसमें बताया था कि इफ वी हैव ए सर्कल एंड टू टेंजेंट्स ऑन इट, और इसका सेंटर क्या है, O। तो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, की ये वाली जो टेंजेंट और एक ये वाली जो टेंजेंट है ये इक्वली इंक्लाइंड होती है किसके साथ, टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। कि अगर आप इस सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दोगे तो ये आपकी टेंजेंट है इसके साथ इक्वली क्या होंगी, इंक्लाइंड होंगी। से सुनो, तो मैंने इस सर्कल के सेंटर को यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन करवा दिया, तो ये जो आपके पास दिख रही है ये क्या है, इसकी क्या है, ये जो एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या इक्वल, इट मींस ये इसकी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। तो आप चाहो तो वो थ्योरम भी मेंशन कर सकते हो। तो देखो मैं लिख देता हूं, एक थ्योरम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जो मैंने एक्सरसाइज 10.2 में भी करवाई थी, कि दैट टेंजेंट्स आर इक्वल इंक्लाइंड, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, टू द line segment, to the line segment joining this center, joining the center, joining this center to the point, to the point। और जो पॉइंट है वो कैसा होगा, एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप इस सर्कल के सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करवा दोगे तो ये जो टेंजेंट्स है ये इक्वल इंक्लाइंड होगी, मींस यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल यहां पे बनेगा। रीजन एंगल बोलो, बोलो PTO इक्वल्स टू एंगल QTO। ये जो एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम मैंने मेंशन कर दी कि टेंजेंट्स आर इक्वल इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, की अगर आप इस सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दोगे टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल इंक्लाइंड। इट मींस अब ये जो TO है, TO इज इंटरसेक्टिंग, TO इज इंटरसेक्टिंग PQ। TO जो है वो PQ को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर, मान लो R पर। TO इज इंटरसेक्टिंग PQ एट R, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, R पर। और अभी आपको मैंने थ्योरम बताई कि अगर आपके पास अब ये एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इट मींस ये क्या होगी, आपकी एंगल बाइसेक्टर क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो TO इज अ एंगल बाइसेक्टर, TO इज अ एंगल बाइसेक्टर। कि जो TO है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंड एज वी ऑल नो दैट एंगल बाइसेक्टर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द अदर साइड, कि जिस साइड पर वो परपेंडिकुलर, जिस साइड पर जाएगा वो उसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा और उसमें क्या होगा, बाइसेक्ट भी करेगा उसको। सो वी कैन से, सो वी कैन से दैट, क्या बोलोगे आप, कि ये जहां पर इसको आर को क्या कर रहा है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। से सो नो, सो वी कैन से दैट एंगल, बोलो TRP इक्वल्स टू एंगल TRQ 90 डिग्री। रीजन, रीजन क्या बताया आपने, कि आप जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो और एंगल बाइसेक्टर जिस साइड पर जाएगा वहां पर परपेंडिकुलर भी होगा और क्या होगा, बाइसेक्ट भी करेगा साइड्स को। तो इट मींस ऊपर वाली जो साइड आपकी वो इसके क्या होगी, इक्वल होगी। कि जो आपके पास PR है वो किसके इक्वल होगा, QR के। PR किसके इक्वल होगा, QR के। PR इक्वल्स टू QR, कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेट्स द लाइन, मेक ए 90 डिग्री एंगल एंड बाइसेक्ट द लाइन। ठीक है, जहां पर ये बाइसेक्ट करेगा, जहां पर ये मीट करेगा उसको 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा और उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। कोई दिक्कत है, चलें, ओके नेक्स्ट। अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो एज वी ऑल नो दैट आपके पास जो PQ है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है PR इक्वल्स टू QR, तो आपको पता है कि आपके पास जो PQ है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। से सुनो, तो मैं PQ कैसे लिख सकता हूँ, PR प्लस QR इक्वल्स टू 8। अब आपको पता है QR जो है वो किसके इक्वल है, PR के। सो PR प्लस PR इक्वल्स टू 8, 2PR इक्वल्स टू 4, सॉरी 8,
और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में, सो पी आर की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। से सुनो, कोई डाउट है? तो इट मीन्स यहां से यहां तक की जो वैल्यू आपके पास, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये क्या है 4 सेंटीमीटर। अब आपको बताइए ये जो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180। तो अगर ये इधर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इधर भी कितने डिग्री का बनाएगा 90 का। तो यहां पर आपके पास जो ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल, ये कितने डिग्री का एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। सो ट्रायंगल पी आर ओ या ओ आर पी फ्रॉम ट्राइंगल ओ आर पी, कि ओ आर पी जो ट्राइंगल है वो एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी विल यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस और नो? तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड की आपकी हाइपोटेनस, बाकी आप जिसको चाहो उसको परपेंडिकुलर लो, जिसको चाहो उसको बेस लो, क्योंकि अदर एंगल आपके पास गिवन नहीं है। तो मेरे पास हाइपोटेनस तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 इक्वल्स टू, मान लो ये आपका परपेंडिकुलर है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इट मींस 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस मेरे पास क्या है ओ आर, सो ओ आर स्क्वायर। अगर ये इधर आएगा तो 25 माइनस 16, और 25 माइनस 16 क्या होता है 9, सो 9 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। बट मुझे तो क्या चाहिए बेस मींस ओ आर चाहिए, तो आप इसका क्या लोगे स्क्वायर रूट, सो टेक स्क्वायर रूट, ठीक है स्क्वायर रूट। और जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो एज यू ऑल नो दैट कि आपके पास जो साइड आएगी वो प्लस की भी और माइनस की, बट साइड कैसे नहीं हो सकती नेगेटिव, जो नंबर आएगा वो प्लस और माइनस का आएगा। सो वी कैन से ओ आर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। जो ओ आर है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, ये जो पॉइंट आर है ये 3 से, ये ओ आर है ये 3 सेंटीमीटर है, कोई डाउट? बट वी हैव टू फाइंड आउट टीपी। क्या फाइंड आउट करना आपको टीपी, तो टीपी तो यहाँ कहीं आया ही नहीं। तो देखना ध्यान से कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ आर पी, ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ पी टी, ट्राइंगल ओ पी टी, से सुनो। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर आप देखो मैंने एक बोला एंगल ओ, तो देखो एक तो एंगल जो ये है ओ आर पी, तो इसमें एंगल ओ आया कि नहीं आया। अब फिर मैंने बोला कि ओ पी टी, तो इसमें भी एंगल ओ आया कि नहीं आया। तो इट मींस दोनों में क्या आ रहा है एंगल ओ, सो एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ, कॉमन एंगल है आपका, क्या है कॉमन एंगल, है कि नहीं। नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको पता है कि एंगल कितने डिग्री का है 90, ओ आर पी कितने डिग्री का है 90, सो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू, अब देखना यहां से ओ पी टी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है सबको पता होगा कैसे, थ्योरम 10.1 से, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। तो इट मींस ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का, एंगल ओपीटी इक्वल्स टू एंगल ओपीटी। कैसे आया भाई थ्योरम 10.1 से, ये जो है वो 90 डिग्री का हो गया, दोनों कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के हो गए, कोई डाउट है? तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में कितने एंगल्स इक्वल हो गए 2 एंगल्स, एंड एज वी ऑल नो दैट triangle ORP is similar to triangle OPT by which similarity rule? By AA similarity rule, AA similarity rule criteria। अब आपको पता है कि जो 2 एंगल्स इक्वल हो जाएं तब भी वो सिमिलर होंगे, और 3 एंगल्स इक्वल हो जाएं तब भी वो क्या होंगे एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल्स, यस और नो। एंड वी ऑल नो इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, कि जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का मींस होता है कि इधर से जो साइड लोगी उधर से वो साइड लोगी, जैसे मैंने इधर से क्या लिया OR, तो इधर से क्या लोगे OP। सो therefore their corresponding sides are in equal ratio, their corresponding sides are in equal ratio, their corresponding sides are in equal ratio। इनकी जो corresponding sides हैं वो क्या होंगी इक्वल रेशियो में होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो बताओ कैसे, कि ओ आर रेशियो ओपी, ओ आर रेशियो ओपी इक्वल्स टू आरपी रेशियो पीटी, आरपी रेशियो पीटी। फिर मैंने यहां से फर्स्ट लिया और यहां से थर्ड लिया ओपी, तो यहां से ओटी, सो ओपी इक्वल्स टू ओपी अपॉन ओटी। कोई डाउट है? अब मुझे जो चाहिए वो क्या है
टीपी बोल दो चाहे आप क्या बोल दो उसे, टीपी बोल दो ना, टीपी, पीटी बोल दो चाहे टीपी बोल दो, एक ही बात है। मेरे पास ओ आर है क्या, तो देखो ओ आर है। मेरे पास ओपी है क्या, ओपी है। मेरे पास आरपी है क्या, आरपी है। और मुझे चाहिए क्या, टीपी। और मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे पास जो रेशियो है उनमें 4 है, उनमें 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। सो बताना ओ आर क्या है, ओ आर इज 3 अपॉन, आपके पास क्या है ओपी, ओपी क्या है 5 इक्वल्स टू, फिर आपके पास क्या है आरपी, आरपी क्या है 4 अपॉन टीपी। अब आप इसे क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 इंटू टीपी, 4 5 जा 20, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। सो टीपी इक्वल्स टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। But you will say, sir, you told that you will discuss this question by 3 methods. Yes or no? हाँ, तो देखो इसका सेकंड मेथड देखते हैं। मेथड सेकंड है, सेकंड मेथड क्या है कि आपको सेम जो है यहां तक तो आपको सेम ही करना है, यहां तक आपको क्या करना है सेम, से सुनो। इससे आगे क्या करना है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना 9 जो है यहां तक आपको सेम लिखना है, ये जो ब्लू ब्लू वाला है यहां तक आपको क्या लिखना है सेम। उससे आगे देखो, उससे आगे आप क्या करोगे कि अगर आपको ये सिमिलरिटी वाला नहीं पता लग रहा कि कौन सा रूल सिमिलरिटी का है क्या नहीं, वो नहीं पता, तो आप डायरेक्ट आ जाओ कि आप जो है वो टी आर को क्या एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो वाई, और टीपी को क्या एज्यूम कर लो एक्स। सो लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करोगे आप एज्यूम करोगे कि जो टी वाई है, सॉरी टी आर है वो क्या है वाई सेंटीमीटर, एंड जो टीपी है वो क्या है एक्स सेंटीमीटर। यस और नो? अब आप एक बार ट्राइंगल कौन सा लोगे, देखो मैं थोड़ा सा इस ट्राइंगल वापस बना रहा हूं इसको, फिगर को, सॉरी, है ना, ओके। तो देखना अभी आप, अब आपको पता है कि ये जो है ये पॉइंट ओ, ये टी, ये आर और ये टी, ठीक है। एक बार मैं इसको भूल जाता हूं, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का। रीजन by theorem 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. So यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो by using बीपीटी, by using पीजीटी, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस क्या आएगा आपके पास, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो आपकी हाइपोटेनस होगी। तो आपको पता है यहां से यहां तक तो है y, और ये क्या है 3, तो y प्लस क्या हो जाएगा 3। सो y प्लस 3 रेज टू द पावर 2। किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, किसी को भी क्या ले लो बेस, मान लो ये आपका परपेंडिकुलर है ना, तो ये 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस, मान लो ये आपका बेस है और ये x है, तो x का स्क्वायर। कोई डाउट? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है? नेक्स्ट, अभी देखो आपके पास, एक बार इसको भूल जाइए आप, अब आपके पास एक ट्राइंगल हो रहा है, एक बार इस ट्राइंगल को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर जिस लाइन पे जाएगा वहां राइट एंगल बनाएगा और उसको क्या करेगा बाइसेक्ट। ये क्या है x और ये क्या है 4। यस और नो? सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अभी है टी आर पी, इन ट्रायंगल टी आर पी। और पहले वाला ट्रायंगल कौन सा था, टी ओ पी या टीपीओ, इन ट्रायंगल टीपीओ। सो देखो इस ट्रायंगल में वही सेम हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर मान लो या फिर ये मान लो, तो चलो 4 है, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये y था तो y स्क्वायर। कोई डाउट है? अब आप ध्यान से देखोगे कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है क्या 16 प्लस y स्क्वायर, मान लो इक्वेशन नंबर क्या है 2। तो आप इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में।
So put value of x square in equation first. तो बताइए वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 25 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, यस और नो। और ये आपके पास 25 प्लस 16 क्या हो गया, 41। सो 41 और ये उधर माइनस का जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस, सो 6y इक्वल्स टू 41 माइनस 9। तो आप बोल सकते हो कि 6y इक्वल्स टू 32। यस और नो। तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो 32 अपॉन क्या आ गई, 6, और आप चाहो तो क्या बोल सकते हो 16 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर, y की वैल्यू। बट वी हैव टू फाइंड आउट टीपी, और टीपी को आपने क्या लिया था, x। इट मींस आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आप कहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 करो 2 में। तो देखो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस y, इसका स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9। एलसीएम बोलिए आप इसका, x स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 9, 16 9 जा 144 प्लस 256। सो 144 प्लस 256 क्या हो गया, 400 अपॉन 9। बट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, सो टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लोगे तो इधर से x स्क्वायर की जगह तो क्या आएगा आपके पास x, और 400 का स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर रूट 3, और सेंटीमीटर। प्लस और माइनस का आएगा, बट साइड नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो x क्या था आपका, टीपी। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टीपी इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब बोला सर इसका थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड भी देखिए अभी आप। मैं चलो ऊपर से कहा, यहाँ क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड मेथड कैसा होगा तो देखना। मेथड थर्ड ये सबसे इजी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, चैप्टर 8 का यूज हो रहा है। तो कैसे, आपको देखो थोड़ा सा हिंट देता हूं कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका क्या है, सेंटर, और ये इसकी कोड, ठीक है, और ये एक ज्वाइन करवा दिया मान लो। तो ये टी पी क्यू ओ और ये आर है। से सुनो, मान लो कि यहां पर जो एंगल है वो थीटा है। एंगल क्या है, थीटा। अब देखो सेम यहां तक तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये 3 वाला तक तो यहां करना ही पड़ेगा। यहां से थर्ड मेथड चेंज होगा। यहां से थर्ड क्या है कि आपके पास ओ आर क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 4 5, और ये क्या आ गया 4। तो आप सबसे पहले ट्राइंगल देखिए ओ आर पी। सो इन ट्राइंगल ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ आर पी में मैंने मान लिया कि एंगल ओ आपके पास है। क्या है, एंगल ओ। सो लेट एज्यूम, लेट एंगल आर ओ पी या पी ओ, आर ओ पी इज थीटा, या डायरेक्ट लिख देता हूँ थीटा, ठीक है, कोई डाउट? अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू, ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, ओ आर पी। tan थीटा क्या होता है, पापा बोल पापा, हंसते हंसते बोल। तो tan का फॉर्मूला क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास, देखो जो एंगल गिवन है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। और ये कितने डिग्री का है, 90, 90 की जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। सो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3। से सो नो। नेक्स्ट, अब आप एक बार इस ट्रायंगल को, इसको साइड को भूल जाइए, और अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब आप ट्रायंगल लेंगे ओपीटी। सो आपके बोलोगे इन ट्रायंगल ओपीटी। सेम वही करना है, आपको पता है एंगल ओ क्या है, थीटा है, से सो नो। सो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये आपके पास 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री इधर सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो एंगल गिवन है उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। सो आपके पास tan थीटा, फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपके पास टीपी, और बेस क्या है ओपी। ओपी क्या है
5। तो देखो ये भी tan थीटा की वैल्यू है और ये भी tan थीटा की वैल्यू है, तो आप इस tan थीटा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, या फिर ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये मान लो इक्वेशन सेकंड है, तो या फिर आप tan थीटा की जो वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में पुट कर दीजिए। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये अगर लेफ्ट वाले दोनों इक्वल है तो राइट वाले भी दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे इक्वल। सो 4/3 इक्वल्स टू टीपी अपॉन 5। इसको इधर भेज दीजिए आप, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। सो 4 5 जा 20, 20/3 इक्वल्स टू सेंटीमीटर इक्वल्स टू टीपी। तो देखो आपके पास ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कि अगर आपको ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है तो। सो ये आपके कंप्लीट हो गए ऑल एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 10। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है ये भी मेंशन करना, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।